सम्मानित करें और मैं इधर से प्रोफेसर निवेदिता सिंह जी को आमंत्रित करूंगा कि हमारे नरेश कुमार जी को मोमेंटो देकर सम्मानित करें। निवेदिता आगे जी, आगे नरेश कुमार जी को। दुनिया में कभी कभार ये सहयोग बड़े कम मिलते हैं। निवेदिता इज लाइक एल्डर सिस्टर टू मी। हम दोनों गुरु भाई हैं, मेरी गुरु बहन है। ये मौके बड़े कम मिलते हैं। Good afternoon, respected panelists and my fellow research scholars. Today my topic for the seminar is Voice Culture for Naturally Good Voices. Change the slide, please. The voice serves as an instrument of communication in music. Only the human voice can convey emotion through various phonetics, intonations, language, and musical notes, as it can control the frequency, timbre, and pitch. Singing requires highly developed muscles, which is possible by correct breathing and adjusting the sound box. The shape of the mouth, the proper pronunciation of words, vowels, and consonants, being able to adjust according to different layers or tempos, and volume also play an essential role in the production of a singing voice. What is voice culture? Voice culture deals with the correct form of voice production. Vocal lessons can help one decide their vocal quality and subsequently how to manipulate and use those qualities aesthetically. One must develop the voice to span over at least 2.5 octaves. Hindustani classical vocal music generally demands a certain kind of voice that is sonorous, has an attractive tonal quality, rotundity, or in Hindi, golai, stability, volume, range, articulation of vowels in akar form, and uses embellishments. One of the techniques of developing an open throat voice includes swar sadhana or kanta sadhana in the lower octave, which help in molding the voice, making it malleable, and also developing breath control. Apart from practicing to sing in time, understanding the pitch and holding a steady note, one must also train the vocal cords where to pause, avoid unnecessary force while singing a note or embellishment, for fear of tiring out the voice and sounding hoarse or wavering. Some exercises and common techniques of riyaz taught by the guru begin with introducing each note to the student slowly and steadily. Once familiarity is established, swar sadhana is taught, starting with singing the Shuddha Swar Saptak in ascending and descending order. This exercise is the most important, as the student needs to learn the phonation, intonation, usage of vowels in akar, okar, ikar, and ukar. Establishing the notes in the Mandra Saptak and continuous practice of this opens up the lower as well as higher pitch of the voice. Next is to sing the ascending and descending order of the particular rag continuously to a constant rhythm. This is followed by singing different alankars or permutations and combinations, again in ascending and descending order of the same rag. It helps the student to identify and familiarize themselves with the rag swaroop and the usage of the notes. The guru then teaches the student certain paltas or note combinations peculiar to that rag, which are memorized to enable the student to come up with more such combinations. It could take up to 6 months or a year at least, with constant supervision from the guru, to see that the disciple does not develop a mistaken pattern of riyaz. One must remain physically and mentally healthy as well. The various resonators required while singing should be clear of any cough or colds. My next slide will be about some famous good voices that
were from the yesteryears. We'll start with Pandit D.V. Poluskar. He was the prodigal son of the brilliant Pandit Vishnu Digambar Poluskar. He had an open-throated voice, which was supple and sweet. His intonation was crystal clear and his presentations effortless. Next is Srimati Hirabai Badodekar. Her voice was melodious and had substance, weight, fluidity, structure and liveliness. She had excellent grasping power and was a diligent and hard-working disciple. She was also adept in singing khyals, tumris, bhajans, ghazals and qawwalis. Next we come to Sureshri Kesarbai Kirkar and melodious voice ranging over 3 octaves. Her intonation was crisp and clear. Breath control helped her voice develop structure and rotundity. Also, her voice, along with variety of artists, was launched into space on NASA's space probe Voyager 1 in 1977. He had a powerful and deeply expressive voice and a very compelling stage presence, using dramatic voice modulations and hand gestures along with theatrics. Next is Ustad Bade Ghulam Ali Khan. He had a very soft and pleasant voice ranging over 3 octaves. He enthralled his audiences with his fast stance, which soon became his trademark. Last but not the least is Kundar Lal Sehgal, who was a very famous playback singer, as everyone knows. He had a tuneful voice full of emotion and sincerity. His distinctive characteristic was a nasal tonality, which was his X factor. Apart from, actually, despite not learning Hindustani classical music, he was adept at singing ghazals and tumris.
like to point out that voice perform in public without perfecting the gaiki and the voice techniques taught to them. It brings out the truest potential in a singer and seasons the voice to endure the test of time. Thank you very much. लता मंगेशकर जी का बड़ा ही मशहूर गाना है, नाम गुम जाएगा चेहरा ये बदल जाएगा, मेरी आवाज़ ही पहचान है गर याद रहे। इसका मतलब है कि एक सिंगर या गायक गायिका की पहचान उसकी आवाज़ ही है, चाहे वो सामने रहे या न रहे। इसी आवाज़ के बारे में आज की परिचर्चा है, वॉइस कल्चर यानी आवाज़ की संस्कृति या संस्कार। मुझे जो विषय मिला है वो है वॉइस कल्चर आज के हिंदुस्तानी। अभी मैं थोड़ा सा आप लोगों के सामने थोड़ा सा मतलब धड़कन बोलती है ना, तेज हो जाती है, चाहे कितना भी इंसान प्रैक्टिस करके आए। तो मुझे लग रहा है मैं सब कुछ भूल रही हूँ, बट मैं कोशिश कर रही हूँ कि मैं थोड़ा काम होके करूँ। हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत में रागों के स्वरों को सिखाने के लिए विभिन्न पैटर्न दिए गए हैं। निधा निधा सा प सा निधा प म प ग म प म ग रे सा निधा नि रे ग म प म ग म ध नि सा सा नि ध प म ग रे सा ग म ध नि सा 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 नि रे सा नि रे ग रे सा नि ध प नि रे सा नि ध प म ध प म ग रे ग ग रे सा। हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत रागदारी संगीत पर आधारित है। रागों की एक मिनट मैं माफ करना, बीच में इंटरप्ट नहीं करना चाहिए। ये जो सरगम की गाना ये इस प्रकार नहीं है शायद आपने। जी मैं बोल रही हूँ, मैं बहुत एकदम जी मैं भूल रही हूँ बिल्कुल। नी दा प म प ग म प म ग रे नी रे अच्छा ये द प म ग रे मात्रा कम हो रही है। अच्छा रे ग म प द नि सा रे सा नि द प म ग म नी दा प, ये वाला है। मैं बिल्कुल सब लग रहा है मैं भूल रही हूँ बिल्कुल। परिवर्तन जैसे आपने टॉपिक लिया जी जी एकदम मुझे लग रहा है मैं ब्लैंक हो रही हूँ, फिर हाथ पैर कांप रहे हैं। अच्छा कर रही हो, पर मुझे थोड़ा मैं थोड़ा सा मैं इसको ना प्रैक्टिकल करने की कोशिश कर रही हूँ। तो अच्छा थोड़ा अच्छा कैरी ऑन। जी जी मैं ये कहना चाहती हूँ कि हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत रागदारी संगीत पर आधारित है। मतलब रागों की जानकारी से ही संगीत शिक्षा का आरंभ किया जाता है, लेकिन आवाज की शिक्षा के बारे में या वॉइस कल्चर के बारे में इस विषय को कभी महत्व नहीं दिया गया है। कई बार ऐसा होता है कि वर्षों तक रियाज करने के बाद भी हम सही तरीके से गा नहीं सकते। इसका कारण है कि हम अपनी आवाज की खूबियां या कमियों को नहीं जानते, इसकी पहचान नहीं होती। वॉइस कल्चर आवाज से संबंधित अध्ययन का विषय है। मान लीजिए मुझे ख्याल की कोई बंदिश गानी है, अलबेली सुरतिया मोरे मन भायो, अलबेली सुरतिया मोरे मन भायो, माथे पे टीका हार गले में सैया जी से अपने करत रार, अलबेली सुरतिया मोरे मन भायो। Mamita, we are running short of time. Since ma'am is sitting here and her lectern is. जी जी We all are waiting for her lectern.
जी प्लीज कम टू द कंक्लूजन। जी, मैं थोड़ा सा वॉइस का कितने शैलियों में किस तरह से परिवर्तन होता है वो कहना चाहती थी। जैसे ठुमरी का कहन या पुकार, न मानूंगी न मानूंगी न मानूंगी पिया के मनाए बिना, जाओ जी जाओ तुम तो रस के रसिया, रस के रसिया, रस के रसिया, रस के रसिया, रस के रसिया। सर इसको फिर शायद नहीं बताऊंगा। वो तो सुने स्वर जो आप लगा रहे हैं उसके साथ मैच कीजिए। मैडम ये बंदिश आप जो गा रही है ना, इसको आप अपने हिसाब से, ये ओरिजिनल बंदिश है, ऐसी नहीं है जी। आप जो भी बंदिश गा रहे हैं ना, वो जो बंदिश जो गा रही है ना, इट इज आप जिस तरह से आप गा रहे हैं उस तरह से वो ओरिजिनल बंदिश नहीं है। ये मैंने न मानूंगे न मानूंगे न मानूंगे मैं तो उन्हीं के मनाए बिना, न मानूंगे। तो उससे हो सकता है प्रस्तुति ना हो पा रही हो वैसे, पर उसके जज्बात समझने चाहिए। सुनने के आदत रहेगा ना उसको मत बोलिए। ये बीच में बहुत बोले यार, उसको गाने मैं तो बहुत कुछ सोच के आई थी, लेकिन अब मेरे थोड़े हिम्मत थोड़ी सी कम हो रही चलिए है। हिम्मत बांध रहे हैं। हिम्मत कम मत करो, टाइम का ध्यान रखो। ये सभी गायन शैलियाँ या म्यूजिकल फॉर्म आवाज के भाव, लगाव व उच्चारण के कारण बदल जाते हैं। मेरे विषय है वॉइस कल्चर आज के परिप्रेक्ष्य में। आज के परिप्रेक्ष्य में स्टूडियो रिकॉर्डिंग बहुत महत्वपूर्ण हो गया, क्योंकि लाइव परफॉर्मेंस पे ऑडियंस नहीं पहुंच पाते हैं, तो कलाकार अपनी पहचान बनाने के लिए यूट्यूब चैनल, वेबसाइट और सोशल मीडिया के लिए स्टूडियो रिकॉर्डिंग करने पड़ती है। अब मैं बताती हूँ वॉइस कल्चर का स्टूडियो रिकॉर्डिंग से क्या संपर्क है। मैं कुछ दिनों पहले कुछ रिकॉर्डिंग करने गई थी, तो मुझे कुछ परेशानियों का सामना करना पड़ा। मेरा बिछड़ा यार मिला दे, सदका रसूल का। मेरा बिछड़ा मेरा बिछड़ा मेरा बिछड़ा। ये लाइव परफॉर्मेंस पे छ नहीं पता चला, लेकिन जैसे मैंने माइक पे छ गाया तो मुझे ये इतना हार्श और लाउड साउंड किया कि मुझे छ ठीक करने में कम से कम 15-20 मिनट लग गए। वैसे तरह दूसरा उदाहरण है, उरत गुलाल लाल भय बादल, मारत भर भर झोरी रे रसिया, आज बीरज में होरी रे रसिया, होरी रे रसिया बर झोरी रे रसिया। अब उड़त उड़ा भड़ भड़, ये फ भ म छ जैसे लाइव में नहीं पता चलता, लेकिन स्टूडियो में बहुत एकदम से साउंड ऐसे भ भ ऐसे स्टूडियो में इतनी माइक इतनी शार्प होती है कि हमारी सांस लेने का भी वो पकड़ लेते हैं। तो मैं ये तो कहना चाहूँगी कि आज की अगर परिवर्तन की बात हो रही है तो लाइव परफॉर्मेंस के साथ साथ स्टूडियो में भी किस तरह से गाना चाहिए, ये एक गायक को या फिर कलाकार को समझना चाहिए। एक बात और मैं कहना चाहूँगी, मुझसे आज कई गलतियाँ हुई है, बट मैं कहना चाहूँगी कई बार शिष्य बिना सोचे समझे अपने गुरु की नकल करते हैं। वो भी कई बार समझदारी से करनी चाहिए। ये नहीं कि मैं सीख रही हूँ, मैं विदुषी सविता जी से ठुमरी सीखती हूँ, इतनी बड़ी कलाकार है ठुमरी की, उनकी माँ सिद्धेश्वरी देवी जी, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि मेरे में वो उनकी बात, जैसे सर ने भी बताया कि वो चीज़ वो एकदम से सही से आए। तो मुझे अपनी आवाज़ की जो कमियां हैं, जैसे सर ने बताया कि वो हरकतें शायद मेरे गले में नहीं आए, तो मैं इसको कैसे प्रस्तुत करें कि मैं सुर में भी गाऊं, गलत भी ना हो। तो ये तो मेरी खुद की समझदारी है। मैं तो सविता जी नहीं बन सकती हूँ, ना सिद्धेश्वरी देवी जी बन सकती हूँ, ना मेरे में शायद लगन भी नहीं है, समय भी कमी है। तो लेकिन मैं एक कलाकार हूँ, तो मैं किस तरह से अपने आप को प्रस्तुत करूँ, तो ये बहुत ज़रूरी है। मेरे कहने का मतलब है कि संगीत की किसी भी शैली का उद्देश्य है लोगों के दिलों को छूना, चाहे वो शास्त्रीय संगीत हो या लोक संगीत। अगर वैज्ञानिक तरीके से सही ढंग से रियाज किया जाए तो सब संभव है, और यही वॉइस कल्चर का उद्देश्य है। मैंने जो कुछ थोड़ा बहुत अपने गुरु
सविता जी से और प्रोफेसर इसे दुर्गा जी से सीखा है, उन्हीं को थोड़ा बताने की कोशिश की है। हालांकि मैं विद्यार्थी हूँ तो मैं माफ़ी चाहूँगी, काफ़ी गलतियाँ हुई हैं और मैं प्रोफेसर रवि शर्मा जी की आभारी हूँ जो मुझे श्रुति जी के सामने और इतने विद्वान लोगों के सामने थोड़ा कुछ बोलने का मौका दिया ताकि मैं घर जाके कुछ और भी अपनी गलतियों को सुधार सकूँ। समय की पाबंदी और सभी की धीरज की भी पाबंदी और मुझे मालूम है कि हम सारे श्रुतिताई जी की संगीत सुनने के लिए बहुत उत्सुक है, उसको मद्देनजर रखते हुए और सभी विद्वज्जन आमंत्रित गण एवं गुरुतुल्य हस्तियों को नम्रतापूर्वक प्रणाम करते हैं। हिंदुस्तानी शास्त्रीय कंठ संगीत शिक्षा में हुए नए परिवर्तन एवं आवश्यकताओं के प्रति अपने विचार बिल्कुल संक्षिप्त स्वरूप में आपके सामने मैं रखना चाहती हूँ। सर्वप्रथम हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत एवं कंठ संगीत की महानता एक कलाकार, एक शिक्षक तथा एक गुरु, एक विद्यार्थी और उनसे भी सबसे महत्वपूर्ण सभी श्रोतागण विविध विविध दृष्टिकोण से हम भली भांति जानते हैं। हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत कंठ संगीत की मानो यह पवित्र गंगा कई हजारों वर्षों से वेद, ऋचा, छांदोग्य, पुराण, संस्कृत श्लोक, मंत्र साधना से आविष्कृत होकर मार्गी देशी संगीत से मार्गक्रमण करते हुए प्रबंधगान, वृंदगान, जहाँ रेफरेंस मिलता है रामायण कालीन लवकुश जिन्होंने वृंदगान किया था, उससे भी परे होकर ध्रुपद गायन, लोक संगीत, ख्याल गायन, उपशास्त्रीय संगीत, समूह गीत इत्यादि विविध गीत प्रकारों में और शैलियों में परिवर्तित हो गई। अभी तो इसमें भी बाल संगीत, स्फूर्ति गीत, पार्श्व गायन इत्यादि विविध संगीत साधनाओं को एवं साधनाओं पर अभी भी आकृष्ट कर रही है। कंठ संगीत कला का यह भगीरथ प्रयास और प्रवास कायम रहा एक मुखोद्गत परंपरा से, ये तो निर्विवाद सत्य है। अपितु परिवर्तन यह निसर्ग नियम है, यह प्रमाण मानते हुए एवं कंठ संगीत का उगम स्थान ओंकार के उच्चारण से है, यह भी मानते हुए हिंदुस्तानी शास्त्रीय कंठ संगीत की मूल धारणा और मुख्य स्रोत को कायम रखते हुए नव परिवर्तन की और एक कदम हम रख रहे हैं। परिवर्तन यह संज्ञा मूल रूप में पुनश्च होने वाले बदलाव को सूचित करती है। भारतीय संगीत में संस्कृति, चाहे वह कंठ संगीत हो या वाद्य संगीत हो या नृत्य, हर एक कला की पारंपरिक एवं शास्त्रानुसार शिक्षा विधि प्रचलित होती है। और ध्वनि जो कि हर एक प्राणी मात्र का आविष्कृत प्राण है, साधन है और वह सुसंस्कारित करने से ही संगीत बनता है। मानवी कंठ एक अलौकिक साधन है जो हृदय और मस्तिष्क के ठीक मध्य अंतर पर स्थित है, जो भावना और बुद्धि को मनोहारी संगम और उससे कंठस्थ संगीत का एक अमोघ साधन मानते हैं। अभी तो कंठ संगीत भावनाओं को परिवेशित करने वाला एक साधन है और यही हिंदुस्तानी कंठ संगीत की शिक्षा प्राप्त करने हेतु मानवीय जीवन का विकास, जिसके अंतर्गत विद्यार्थी दशा में अनेक यानी मानस शास्त्रीय, समाज शास्त्रीय, सांस्कृतिक विधाओं की नींव और ये सब चीजें सुचारू रूप से धारान्वित करने की कोशिश करते हैं। जैसे कंठ संगीत शिक्षा लेने वाले विद्यार्थी अनुकरण, अनुशासन, पुनरावृत्ति, जिज्ञासु, एकाग्रता, स्मृति विकास एवं स्मरण और अच्छी आदतें, सांघिक भावना, प्रतिभा शक्ति इत्यादि सब चीज़ों का अवधारण करने लगते हैं और इत्यादि अनेक गुणों से संपन्न होने की कोशिश भी करते हैं। शास्त्रीय संगीत न कि सिर्फ सुने, सीखे, पढ़े, लेकिन उसका एक परिवर्तित रूप है विद्यार्थी दशा में होने वाले संस्कार और उससे व्यक्तित्व विकास। ये एक भारतीय शास्त्रीय कंठ संगीत की परिवर्तित शैली या परिवर्तित आयाम आप मद्देनजर रख सकते हैं। कंठ संगीत के विद्यार्थी जैसे कहते हैं कि आवाज का सुरीलापन और उसका उपयोग भली भांति जानते हैं, उसका परिणाम उनके दैनंदिन संभाषण के पद्धति पर बिल्कुल सुचारू होता है। कंठ संगीत
अपनी संस्कृति को अच्छी तरह से प्रदर्शित करता है, मानो भौगोलिक सामाजिक परिस्थिति और कंठ संगीत और इसका एक प्रतिबिंब। संगीत यह एक क्रिया निर्भर कला है और बदलते समय के साथ परिवर्तन करना अनिवार्य है। हिंदुस्तानी शास्त्रीय कंठ संगीत अपितु संपूर्णतया भारतीय संगीत मन और मस्तिष्क पर प्रभावकारी परिणामकारक है। पाश्चिमात्य संगीत तन्नडोले है तो भारतीय संगीत मनडोले है। आत्माभिमुख स्वयं को, समाज को अंतर्मुख करने हेतु आत्मानंद को प्रधान तत्व में विश्वास प्रतीत करता है। इसीलिए यह विकास हेतु भारतीय शास्त्रीय कंठ संगीत के लिए मनोविज्ञान सबसे आवश्यक है। जस्ट कंक्लूडिंग, यस, मनोविज्ञान में संगीत को महत्वपूर्ण स्थान की अपेक्षा संगीत में मनोविज्ञान को महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है। और इसी हमें मालूम है कि गुरु शिष्य संगीत परंपरा पद्धति है जो बिल्कुल पारंपरिक है, लेकिन इसमें भी इसको कायम रखते हुए भी या कहीं 100% में उसको कायम रखते हुए हम नई अवधारणा भी कर रहे हैं, जैसे रुचि प्रधान संगीत। कुछ पॉइंट्स ऐसा है कि रुचि, अभिरुचि, रुचि प्रधान संगीत शिक्षा का चयन यह एक महत्वपूर्ण परिवर्तन है। विद्यार्थी कलाकार अपनी रुचि के अनुसार गायक वादक बनता है या कई गायन या वादन कला सीखता है। यह एक भावात्मक विन्यास या अफेक्टिव डिस्पोजिशन है जो प्रेरक शक्ति का कार्य करता है एवं स्वयं सक्रिय बनाता है। संस्मरण, पुनरावृत्ति एवं अनुकरण की रुचि हो तो संपूर्ण मानसिक संबंध उस कला के साथ बना रहता है और उससे निगड़ित जो स्मृति है वो हमेशा बनी रहती है। अभिरुचि, अभिरुचि को आप म्यूजिकल एप्टीट्यूड कह सकते हैं। इसके आधार पर कुशलता प्राप्त करने की योग्यता या जो कॉग्निटिव यानी जो कुशलता जो देवदत्त होती है, भाग्यदत्त होती है, उसके आधार पर अगर उसको हम अनुवंशिकता से जोड़ दिया जाए तो भी भारतीय कंठ संगीत, शास्त्रीय कंठ संगीत सीखने की जो एक प्रेरणा है वो बहुत आगे तक हमें कलाकार की तरफ बढ़ने के लिए मदद करेगी। यह प्राचीनतम कला होने के बावजूद भी मुख्यतः ये प्रायोगिक कला है, यानी इसमें निपुणता प्राप्त करने के लिए आपको सिर्फ पढ़ने या सुनने से काम नहीं होगा, जबकि वो गुरुमुख से आप सुनते नहीं हो तब तक आप उसको सादर नहीं कर पाओगे। आप स्वर पढ़ोगे, ग्रंथ पढ़ोगे, शास्त्राधार तो चाहिए ही चाहिए, लेकिन फिर भी जब तक कि गुरुमुख से आप उसको प्राप्त नहीं करोगे, आप खुद रियाज नहीं करोगे, आप खुद उस पर मनन या चिंतन नहीं करोगे, तब तक ये कला आपको वश नहीं होगी, आप उसको सादर नहीं कर पाओगे। इसीलिए प्रायोगिक कला होने के नाते रियाज, मनन, चिंतन और सीखना ये अपने आप में एक भली भांति बहुत बड़ी चीज़ है। कंठ संगीत में परिवेश यानी महत्वपूर्ण भूमिका है एनवायरनमेंट। एनवायरनमेंट, अनुवंशिकता, म्यूजिकल एप्टीट्यूड, ये सारी चीज़ों को एकत्रित मिलाने से ही भारतीय शास्त्रीय कंठ संगीत शिक्षा अवगत होने में मदद होती है। परिवर्तन की आवश्यकताएं विचाराधीन रखते हुए परिवेश यानी एक प्राणी के शरीर से बाहर की सब दिशाएं जो उसकी प्रभावित करने की क्षमता रखती है। इससे और एक एग्जाम्पल है, जैसे गुरुमुख से हम विद्या प्राप्त करते हैं तो उनकी शैलियाँ, गुरु तो आदर्श है ही, लेकिन उनसे परे उनकी गायकी भी आदर्श है जो कि विद्यार्थी के गायन में भी प्रतीत होती है। लेकिन आजकल ऐसे माना जाता है कि किसी एक गुरु से सीखने से कई अनेक गुरुओं से सीखकर हर एक गायकी की और हर एक व्यक्ति की जो अच्छी बातें हैं, जो अच्छी गायकी है, जो अच्छी सादरीकरण के प्रयास है, वो सीखकर सब मिलजुल कर अच्छा गाना, यही एक विषय सामने आ रहा है। ना कि याद करा के, यानी बिल्कुल स्मृति के आधार पर डिपेंडेंट ना होने से खुद का विचार, खुद का रियाज और ये सारी चीज़ों का अवलोकन करके जो सीखते हैं वही कला और आगे तक जाती है। कंठ संगीत शिक्षा में नए परिवर्तन के लिए और एक आवश्यकता है अच्छे शिक्षकों का होना, और सबसे महत्वपूर्ण बिल्कुल शालेय स्तर, विद्यालय स्तर, महाविद्यालय स्तर, इनको और बढ़ावा देने के लिए उस स्तर से ही संगीत शिक्षा का प्रारंभ करना। और अगर उस स्तर से संगीत शिक्षा को प्रारंभ करना हो तो जैसे
कंटेंट एज पर द एज, वय या उम्र को ध्यान में रखते हुए संगीत शिक्षा का चयन करना ये एक महत्वपूर्ण बात है। हम शास्त्रीय कंठ संगीत सीखेंगे, लेकिन अगर बिल्कुल छोटे छोटे बच्चों को वही हम अलंकार या आरोह अवरोह याद कराएंगे और उसमें वही पुनरावृत्ति करेंगे, तो इससे ज़्यादा बेहतर है कि उसको आप थोड़ा सा स्टोरी फॉर्मेट में बनाएं या सरगम गीत को स्टोरी फॉर्मेट में बनाएं। या जैसे फॉर एग्जांपल हम कुछ फीचर फिल्म देखते हैं और बैकग्राउंड म्यूजिक होता है, यहाँ ऑन मेन सीन देयर विल बी सॉन्ग और बैकग्राउंड पे है वो स्टोरी है, एग्जैक्टली अपोजिट। जैसे कि अगर यही टॉपिक हम महाविद्यालयीन स्तर पे लेते हैं, जैसे कि ये खुद मैंने प्रयोग किया है, जब IIT में सेशन था तो अलंकारों का जो महत्व है वो समझाते समय या वो याद कराते समय एक पिक्टोरियल डायग्राम हमने ड्रॉ की थी और सिर्फ आरोह लिखा था, और आरोह लिखने के बाद विथ पिक्टोरियल डायग्राम वी एक्सप्लेन देम अलंकार। और वो करने से वो लिखना, वो पढ़ना, वो याद करना, उसे थोड़ा सा टेक्निक से अगर सिखाया जाए तो वो ज़्यादा जल्दी अवगत होता है और इंटरेस्टिंग भी होता है। और ये सारी चीज़ें ध्यान में रखते हुए हमें ये परिवर्तन की आवश्यकता है। ये कहकर मैं अपना विचार यही समाप्त। धन्यवाद। जो हमारे वीणा जी ने आखिरी पेपर था, उन्होंने कहा कल्चर्ड वॉइस का मतलब है सुसंस्कारित आवाज। कल्चर्ड वॉइस नेचुरल वॉइस का एक तरह कई फैक्टर्स को ध्यान में रख के किया जाता है। मैं 2-3 उदाहरण दूंगा जिससे कल्चर्ड वॉइस की बात हमें बहुत क्लियरली समझ। जब माइक्रोफोन नहीं था, 78 RPM पे रिकॉर्डिंग होती थी, तो गाना नेजल था बिकॉज दे हैड टू virtually shout in the horn. The singers had to shout. तो वो उस जमाने की आवाज लगाने के तरीके अलग थे। लेकिन जब SM57 और SM58 आ गए तो आवाज के तरीके अलग थे। जगजीत सिंह मध्य सत्तर के बादशाह थे। पंडित जसराज कल्चर्ड वॉइस का अकेला उदाहरण। तो हमें वॉइस कल्चर को बहुत व्यापक परिप्रेक्ष्य में समझने देखने की ज़रूरत है। और उसके साथ एक चीज़ जो मैं और कहूँगा कि जो ये कहीं ना कहीं मॉडर्न टेक्नोलॉजी का एम्प्लीफिकेशन सिस्टम का कमाल है कि नुसरत फतेह अली खान साहब आवाज़ कैसी थी और गाना कैसा, वो श्रिल नहीं था। और वहीं मेरी गुरु बहन यहाँ बैठी है, हमारे गुरुजी हमें कहते थे कि एक सिंगर को, एक पर्टिकुलर सिंगर में नाम नहीं लूंगा, उन्हें सुनो तो जितना भी, लेकिन फॉलो मत करो क्योंकि श्रिल हो जाता है। थैंक यू। अब अरविंद शर्मा जी। कुछ बातें मैं कहनी चाह रहा था, इन्होंने कह दी हैं, लेकिन मुझे फिर से बातों में कुछ आपको बताना चाहूँगा कि बहुत अच्छी बातें तीनों वक्ताओं ने बहुत अच्छा बोला। हमारे भारतीय परिप्रेक्ष्य में कंठ धर्म जो है, कंठगत संगीत जो है, कंठ के धर्म के अनुसार संगीत की शिक्षा देना, इस पे ज़्यादा विचार नहीं हुआ। आपने पढ़ी है बातें, उन्होंने बताया कि ऐसे वो सबको पता है वॉइस कल्चर का, सबके एमए में सबके पास एक चैप्टर होता है, सब जानते हैं वॉल्यूम, ये सॉफ्टनेस, क्यूटनेस, गुड। पर मेरा कहने का मतलब ये है कि बहुत कम लोग गुणीजन, पुराने उस्ताद ऐसे थे जो गुरु देखता था विद्यार्थी का कंठ क्या है, वो अपनी जैसी आवाज बनाने के लिए उसको वैसी ही ट्रेनिंग देने वाले बहुत लोग हैं। आप देखिए उनकी वो बड़ी आवाज मिलती है, वो गुरु उनको अभ्यास ही ऐसे करवाते थे। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी थे, उसमें मैं पंडित विष्णु दिगंबर जी का नाम लेना चाहूंगा, उनके सब शिष्यों की आवाज देखिए अलग। उन्होंने बच्चों के कंठ के धर्म के अनुसार उनको शिक्षा दी। पंडित ओंकारनाथ ठाकुर जी देखिए, पंडित नारायण राव व्यास जी देखिए, उनका कंठ देखिए, आप हैरान होंगे
कि उस काल में भी इस चीज पे लोग मनोसंकीर्णता आ जाती थी। पुराने लोग चाहते थे कि मेरी छाप पूरी दिखे, जैसा मेरा टोन है कि अच्छा ये तो उनका शिष्य है, ये दिखाने के लिए रियाज ही ऐसे करते थे। इससे बहुत नुकसान भी हुआ, बहुत फायदा भी हुआ। मेरे को नहीं लगता कि बहुत कम ऐसे हुए जो गुरु से ज्यादा ऊपर अच्छा गा गए, बहुत कम उदाहरण, लेकिन है ऐसी बात नहीं। अपने जैसी आवाज, जिसके कंठ में क्या विशेषता है, ये देख के उसको ट्रेनिंग देना, ये नहीं हुआ। पहला गाना विशेष रूप से जब मर्द गुरु होकर शिक्षा देते थे तो स्त्रियों को वैसा ही कहा, तो कई शिष्याओं की आवाज हमेशा तेरे कारण। बिल्कुल ठीक है, मैं यही बात कहने वाला था कि उनकी भारी आवाज हो गई। उनका जो नेचुरल, स्त्री का एक कंठ का अपना धर्म है, उसकी जो सॉफ्टनेस है, जो उसकी एक विशेषता है उसके कंठ की, वो मैनली टाइप टोन हो गया। अभ्यास ही इस तरह से करवाते थे क्योंकि गुरु को अपना वो दिखाने के लिए कि ये मेरा शिष्य है, ये बड़ा रहता। मुझे ये कहते, मतलब कहना नहीं चाहिए, कुछ लोग नाराज होंगे, बहुत अभी भी बहुत शौक है कि ये जी वैसी ही आवाज निकालो। उसका गले देखते उसको, उसके गले के अनुसार अलंकार भी वैसे करवाने चाहिए। अगर हो सकता है आपका मंत्र में अच्छा कंठ जाता है तो आप सोनी राग का, क्योंकि गुरुजी गाते हैं, आप उसको गवाओगे तो उसको गला तो बैठेगा ही। आप दरबारी गाना, आपका मंत्र अति मंत्र में जा रहा है तो अड़ाने के लिए उसका, गुरुजी ने गाया मुझे भी गाना है, तो ऐसा हुआ है। जिसे कहते हैं कि ब्लाइंडली उस चीज को फॉलो करने से बहुत नुकसान होगा। और दुर्भाग्य ये भी है कि हमारे यहाँ हिंदुस्तान में, मेरे से भी बहुत से स्टूडेंट ने पीएचडी की है, मेरे बेटे ने अभी यूएस में है, उसने भी वॉइस प्रोडक्शन उस पे किया है विद स्पेशल रेफरेंस टू वेस्टर्न म्यूजिक। अफसोस ये है कि हमारे यहाँ इतने वैज्ञानिक ढंग से शिक्षा नहीं। माफ करो विनय जी, मैं इफ आई एम रॉन्ग, गुरु अपने ट्रेनिंग, हमारे सिद्ध लोग इतने होते थे, आकार बनाना, वो करना, वो बहुत अच्छा था, लेकिन उस बात पे वैज्ञानिक शिक्षा नहीं, उस ढंग से शिक्षा नहीं, और उस पे काम भी ज्यादा नहीं हुआ। शायद यही, जब भी मेरे मित्र नरेश जी ने ये बात बहुत अच्छी कही कि आज से बहुत साल पहले देवधर जी यूएस से इसीलिए गए थे, वो बात मैं कोट करना, यूएस से जाने का कारण ही ये था, उन्होंने देखा उनका गुरु, उन्होंने यूएसए में वो बिल्कुल ऐसे साधारण सा, लेकिन जब वॉल्यूम में इतनी आवाज कैसे है, तो उन्होंने वो तरकीब जानी चाहिए, और उस तरकीब को कुमार जी ने और अच्छे अच्छे लोगों ने लिया। और तरकीब लेना, कुमार गंधर्व जी ने भी बहुत वॉइस कल्चर पर उनकी बहुत विशेषता। मेरे पास मंत्र भी है, मैं कभी, मेरे पास बहुत अच्छे अच्छे लोगों का संग रहा, उनसे बहुत बातें सीखने को मिली, देखने को मिली। उन्होंने एक ऐसा विशेष मंत्र बनाया कि सारे वॉवल्स कैसे चिजल हो गए हैं, सारे कंठ पे गाते समय वॉवल्स जितने भी शब्द हैं, अ है तो अ आकार कितना होना चाहिए, इस पे विचार। तो जैसे आज शॉर्टकट योग हो गया, और जैसे आप कह ही रहे थे कि पहले खुला आकार, बुलंद आवाज, इस पे पीछे बहुत जोर था। क्या करते भाई, माइक नहीं थे, अब तो इतने माइक है। अब क्या शुरू हो गया, क्रोनिंग। देयर इज अ वर्ड इन इंग्लिश कॉल्ड क्रोनिंग। माइक के हिसाब से गाना बनाया, माइक को एडजस्ट करके। और अभी पीछे मेरे मित्र मधुप जी, उनसे मैं भी बैठा था, यही बात हो रही थी। उन दिनों इस पे चर्चा होती थी कि जो हमारा चैम्बर म्यूजिक है, जो बैठते हैं, जो बैठक में जो गायक गाता है वो अलग होता है, और जो ऑडियंस जैसे बहुत ज्यादा किसी उसमें होता है, उसका अलग प्रभाव होता है। लेकिन ये, मैं इस बात को, यस, मैं यही कहना चाहूंगा कि क्रोनिंग से नुकसान ये होता है, फायदा तो यह कि आप माइक को देखते, जहां वॉल्यूम चाहिए वहां गला कंठ थोड़ा पास कर लेते हो, जैसे कर लेते हो। लेकिन इसका भी माइक रख के विद्यार्थी जिसने मंचीय कलाकार बनना, उसको इसका भी ध्यान देना पड़ेगा। दूसरा, जो आजकल जो स्टूडियो की बात कर रही थी, वो अवंती और वीना जी ने भी बात की कि स्टूडियो में आजकल ऐसे ऐसे यंत्र आ गए, इसलिए सारे कलाकार बने हैं। आपको सुरीला बनाते हैं, आपको सुरीला बनाते हैं, जिसे ऑटो ट्यूनर कहते हैं। और मैं देख रहा हूँ और बच्चे अभी सीख रहे हैं। नहीं सर, मेरी वीडियो आ गई, मैं कहता गाना पंजाबी कहते नाकते पूंजन नहीं आया, घर की नहीं आई यार, अभी लेसेस तो बांधने नहीं आए, तो सर मेरी वीडियो आई, सर देखो जी। तो ऐसा युग आ गया है, इससे आप सबको बचना चाहिए। हमारी इतनी सुदीर्घ और रिच परंपरा है और बहुत संजो के रखी है गुरुओं ने, और उसको प्राप्त करने के लिए उतनी श्रद्धा से कुछ तप भी करने की जरूरत है।
इतनी जल्दी डिप 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 इट्स रेडी टू सिप वाला जो युग है, इससे कोई ज्यादा लाभ नहीं होने वाला। आपकी MA PhD हो जाएगी, आप प्रोफेसर लग जाओगे। और माफ करना, आधे लोग इसलिए भी करते हैं कि चलो जी मुझे प्रमोट होना है, मैंने ये प्रोफेशनल कोर्स किया, ये किया। इस चीज का लाभ तो है, लेकिन आप देखिए वाकई में फायदा कितना है, जिससे कि आने वाली पीढ़ी लाभान्वित। तो मैं रवि जी को बहुत धन्यवाद देता हूँ, इनके नाम की एक ताली लगा दीजिए। ऐसे सेमिनार हो, लेकिन इसमें थोड़ा सा एनालिटिकल और क्रिटिकली कुछ लोगों को बोलना भी चाहिए, जिससे कि वो आगे हो जाए। आप कर तो रहे हैं। गुस्सा नहीं करना चाहिए। नहीं मतलब कुछ आपने भी लोग ऐसे बैठे हैं, कुछ कहना चाहते हैं। नहीं, असल में अभी क्या है, अभी मैडम का लेक्चर, धन्यवाद। इसलिए ये समस्या। थैंक यू सो मच।